हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स बाय आरएचपी। आज के इस वीडियो में हम 8 जनवरी 26 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को सिंपल लैंग्वेज और एमसीक्यू फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह वीडियो बैंकिंग, एसएससी, यूपीसी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। What is the name of modern warfare force announced by the Indian Army in January 2026? और इसका करेक्ट आंसर है भैरव। इंडियन आर्मी ने एक मॉडर्न वॉरफेयर अनाउंस किया है, उसका नाम है भैरव। The main of this force is to strengthen India's combat capabilities. The Bhairav force will focus on the use of drone technology in military operations. Under this initiative, Indian Army plans to train more than 1 lakh drone operators. कितने operators? 1 lakh operators. This step will help the Indian Army become more prepared for future warfare. Question number 2. On January 4, 26, the Indian Army signed an emergency procurement contract for which defense system? और इसका करेक्ट आंसर है सौराष्ट्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। The Indian Army signed an emergency contract worth rupees 293 crore with NIBE Limited. This contract was signed under the Ministry of Defense and it is for the purchase of Saurashtra rocket launcher system. Question number 3. The Indian Air Force celebrated 25th anniversary of the first flight of which aircraft on January 4, 26? और इसका करेक्ट आंसर है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। On 4 January, Indian Air Force celebrated 25th कौन सी 25th anniversary of the first flight of the Tejas light combat aircraft. Tejas is indigenously developed fighter aircraft of India. The first flight of Tejas took place on January 4, 2001. फर्स्ट फ्लाइट कब took place हुआ था? 2001 में। The aircraft was flown by Wing Commander Rajiv Kotial और इसके विंग कमांडर कौन थे? राजीव कोटियाल। The Tejas LCA program was launched in 1983. Question number 4. The Live Events Development Cell was set up by which ministry? LEDC सेटअप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। In January 26, the Ministry of Information and Broadcasting set up a new unit called the Live Events Development Cell. ये किसके लिए लॉन्च किया है? To support concerts and live entertainment events in India. Its main goal is to boost India's live events economy. The cell was formed in July 25 under Union Minister Ashwini Vaishnaw. इनके अंदर ये सेल पहले फॉर्म किया था जुलाई 25 में। इंडिया ऑर्गेनाइज लाइव इवेंट्स मार्केट वाज वर्थ 286 करोड़ इन 24। क्वेश्चन नंबर 5. Which company became the first payment company in India, YEMI, APAC and South Africa to receive the ISO IEC 4200 certification? किस कंपनी को सर्टिफिकेशन मिला है? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, that is FSS. On 6 January, Financial Software and Systems, also known as FSS, became the first payment company in India, the Middle East, Asia Pacific and South Africa to receive the ISO EC 4200 certification. तो स्टूडेंट यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेशन मिला है, कौन सा ISO IEC 42001 सर्टिफिकेशन और एंड कौन से कंपनी को मिला है, तो FSS फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। ये दो चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6. द जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड वॉज लॉन्च बाय विच बैंक? और इसका करेक्ट आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, उसका नाम है जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड। और इसका कुछ फीचर्स है। स्पेसिफिकली ये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड डिजाइन किया है जो कि फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है।
The card offers zero foreign exchange markup on international transaction. It also provides travel and lifestyle rewards. ये कार्ड कुछ रिवॉर्ड्स भी देता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ONGC partner with which company to enter the ethane shipping business in January 26? कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुई है? मित्सुई ओएसके लाइंस. और कौन से बिजनेस में? इथेन शिपिंग. On January 5, 26, ONGC partnered with Mitsui O.S.K. Lines to enter the ethane shipping business. ONGC works under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Mitsui O.S.K. Lines is a Japanese shipping company. Both companies will set up two joint ventures for ethane shipping. यहाँ आपको तीन चीजें याद रखनी है. एक कौन सी कंपनी है? मित्सुई ओएसके. और किस कंट्री की कंपनी है? जापानीज शिपिंग कंपनी. और फॉर हॉट पर्पस इथेन शिपिंग के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ HSBC प्राइवेट बैंक इन जनवरी 26? इसका अपॉइंटमेंट हुआ है? इडा लियू. हर अपॉइंटमेंट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 5. 5 जनवरी से इनका इफेक्टिव होने वाला है अपॉइंटमेंट. और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? गैब्रियल कैस्टिलो. शी वॉज प्रीवियसली सीईओ ऑफ दिस बैंक, हांगकांग शंघाई एंड बैंकिंग कॉर्पोरेशन. और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम. क्वेश्चन नंबर 9. मनोज कोठारी who passed away in January 26 was associated with which sport? और करेक्ट आंसर है बिलियर्ड्स. In 2005, he was awarded the Major Dhyanchand Award by the Government of India. इनको जो अभी मनोज कोठारी पास हुए हैं, इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 10. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड? इसके ऑथर कौन है? प्रेम प्रकाश. अभी ये न्यूज में क्यों आया है? बिकॉज गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने इनका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है. द बुक वॉज रिटन बाय प्रेम प्रकाश. और प्रेम प्रकाश कौन है? सीनियर जर्नलिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ आसियान न्यूज इंटरनेशनल. द बुक वॉज फर्स्ट पब्लिश इन April 2025 बाय विटास्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड. क्वेश्चन नंबर 11. सीनियर कांग्रेस लीडर सुरेश कलमाडी who passed away in January 26 was associated with which ministry? और इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. तो दोस्तों ये थे 8 जनवरी 26 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल करंट अफेयर्स बाय RHP. अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा.